नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कवरेज में। आज बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले नामांकन की, जहां पर एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह कुछ देर के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, उनके नॉमिनेशन से जुड़ी तमाम खबरें होंगी और साथ ही साथ राजनीतिक जो पहलू हैं उन पर खास चर्चा भी करेंगे। मैं हूं कविंद्र, मेरे साथ कई खास मेहमान आज इस शो में शामिल होंगे। And I'm Neelu Vyas. So in our continuing coverage of the presidential and the vice presidential elections, it's another important day when NDA candidate for the post of vice president Jaswant Singh files his nomination. Over the next 2 hours, we'll get you all the nuances of the vice presidential poll, the electoral arithmetic, political realignments, and of course, most significantly, the two most important personalities in the fray. So one would perhaps say that it's not a political contest, but a contest of eminence, contest of gentlemen in diplomacy and politics both. To discuss this and more, we have our eminent panel of guests in the studio. Now let me introduce them one by one. We have former Ambassador Vivek Kajju with us, senior journalist Sanjeev Srivastav, and also senior journalist Pradeep Singh. Welcome all of you, sir. So sir, I would begin the discussion by coming to you, Ambassador Kajju. As I just described, it doesn't look like a political contest. Of course, numbers are on the side of Hamid Ansari. Of course, the elections have to go. One would wait for the results. But numbers are heavily stacked in favor of Mohammad Ahmed Ansari. But apart from the numbers, people are also talking about the stature of the personalities who are in the fray. Jaswant Singh, it's a clash of eminence. So what would you say about the personality of Jaswant Singh? Well, I think that Mr. Jaswant Singh has spent, of course, an entire life in politics and public life. But he's been more of a statesman. He has a vision of India, which he has articulated both in Parliament and outside. An image of India which is rooted in our civilizational ethos, which is inclusive. He has a vision of India taking its rightful place in the comity of nations. So all in all, he is a person with great insights. He is acknowledged as being one of our finest ministers of external affairs. He's held very eminent portfolios, defense, finance. And in my own little interaction with him as an official, when he was heading our ministry as the Minister of External Affairs, and when I was ambassador in Afghanistan, I found that Mr. Jaswant Singh had a clear idea of our strategic and foreign policy interests. तो जसवंत सिंह के बारे में कुछ और चर्चा होगी, कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हम उनके घर का, जहां पर हमारे सहयोगी पंचानन इस वक्त मौजूद हैं। पंचानन, क्या जानकारी मिल रही, कितने बजे निकलेंगे जसवंत सिंह और कौन से और से उनके साथ नेता होंगे, बीजेपी की या फिर एनडीए के दूसरे? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जसवंत सिंह के आवास के बाहर 15 मूर्ति लेन, और जो पार्टी सूत्रों से खबर मिली है कि लगभग वो 11:30 बजे यहां से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और ठीक 12:30 बजे वो पर्चा दाखिल करेंगे, ऐसा हमें पार्टी सूत्रों ने बताया है। और उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता होंगे, सुषमा स्वराज, अरुण अडवाणी जी, और इसके अलावा और भी नेता होंगे। हालांकि उनका अभी नाम पता नहीं है, लेकिन ये उसके बाद नामांकन का जब पर्चा दाखिल करेंगे उस वक्त पता लगेगा हमें। लेकिन इस समय सुबह से कई सारे जो राजस्थान के लीडर्स हैं वो मिलने के लिए जसवंत सिंह से आए हुए हैं। जसवंत सिंह अंदर ही हैं और ये खास जो बात हमको पता लगी है वो ये है कि वो ठीक 12:30 बजे नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। और पंजन, जैसे कि आपने कहा कि कुछ नेता उनसे मिलने आए हैं, यानी कि लगातार क्या बैठकों का दौर भी जारी है नामांकन से पहले? जी हाँ, ये अमूमन ऐसा होता ही है कि उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ आते हैं, उनको अपना समर्थन जताते हैं, और एनडीए के वो समर्थित उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और सुबह से ऐसा करीब 4 से 5 जो बड़े लीडर्स राजस्थान के हैं वो आए हैं, और ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं। क्या अभी तक कोई मीडिया से बातचीत उन्होंने की या फिर कोई इस तरह की जानकारी की नामांकन से पहले वो शायद मीडिया से कोई बातचीत करें या फिर उसके बाद? नहीं, अभी तक हमने कोशिश जो की है उनसे बातचीत करने की, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है उनकी, और ऐसा लगता है कि जब वो बाहर निकलेंगे अपने नामांकन के लिए तभी उनसे कोई शायद बातचीत हो पाए। चलिए पंचानन, आप नजर रखिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो पंचानन, जो कि नीलू मौजूद थे वहां
और बता रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं और कुछ समर्थक जो सांसद हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वक्त जैसा कि उन्होंने बताया पंचानन ने कि करीब 12:30 बजे के करीब वो निकलेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार की, एक नजर डाल लेते हैं कि उनके राजनीतिक सफर पर किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस मुकाम पर आज हैं उन्होंने किन पड़ावों के जरिए, किन रास्तों के जरिए वो यहां तक पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले में 3 जनवरी 1938 को हुआ। अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई पूरी करने वाले जसवंत सिंह 9 बार लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे। अपने राजनीतिक करियर में जसवंत सिंह ने भारत सरकार में रक्षा, वित्त और विदेश समेत 6 अहम मंत्रालय संभाले हैं। इससे पहले 19 साल की उम्र में ही सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने कुछ मतभेदों के कारण सेना से इस्तीफा देकर राजनीति को अपना करियर बना लिया। अपने संसदीय जीवन में उन्होंने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, पर्यावरण, रक्षा, ऊर्जा संबंधी स्थायी समितियों में भी अपना योगदान दिया। सेना और राजनीति में अहम मकाम हासिल करने वाले जसवंत सिंह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सीनियर फेलो और ऑक्सफोर्ड तथा वार्विक विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कई दूसरी भाषाओं में 18 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें एक का अनुवाद फ्रेंच में भी हो चुका है। विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के संबंध सुधारने के लिए स्टॉप टैलबॉट से अहम बातचीत की। दरअसल दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने में जसवंत टैलबॉट वार्ता को आज भी मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी किताब में कुछ बातों की वजह से उनका नाता कुछ वक्त के लिए बीजेपी से टूट गया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने उन्हें फिर से पार्टी में वापस बुला लिया। 74 साल से ज्यादा उम्र के जसवंत सिंह इस वक्त लोकसभा में दार्जिलिंग से सांसद हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। So definitely the candidature of Jaswant Singh has lent a certain seriousness, a stature to this contest of the vice presidential poll. Now remember, last Monday was that NDA meeting in which his name was announced. Lalkrishna Advani had announced his name, and immediately after his name was announced, our correspondent Akhilesh Suman caught up with Jaswant Singh. Let's listen into what exactly he had to say. हमारे साथ हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से जसवंत सिंह जी। पार्टी ने जो दायित्व आपको सौंपा है वह लगता है काफी चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को आपने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कौन से कारण है? चुनौतियों को स्वीकार करना ही मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंश रहा है। 15 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गया था, तब से लेकर के आज तक जीवन पर्यंत चुनौतियों से झेलता रहा हूं और उनके समाधान निकालता रहा हूं, ईश्वर की कृपा से। व्हिप भी शायद नहीं होता है इस चुनाव में, तो ऐसे समय में आपको किन दलों से समर्थन की उम्मीद है या किन ऐसे एमपी से समर्थन की उम्मीद है जिसके आधार पर आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? उसका विश्लेषण मैं यदि टेलीविजन पे करने लग जाऊंगा तो फिर वह रणनीति ही क्या रही। आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी में हमेशा रही है, और आपको आज पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। इसके बारे में आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाकर, जहां दार्जिलिंग से आप खड़े हैं, वहां से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि दार्जिलिंग में मुझे बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्रेम दिया है, और वो मेरे लिए मेरे जीवन की एक धरोहर है, और मैं जीवन पर्यंत उनके लिए जो भी कर सकता हूं करता रहूंगा। राज्यसभा की भूमिका और उपराष्ट्रपति भूमिका के बारे में 2 शब्द आप कह दें। राज्यसभा केवल एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाते ही दूसरी संस्था नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है देश के रिपब्लिकन ऑर्डर में, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में, और उसके सभापति के रूप में जो जिम्मेदारी निभानी होती है वह मैं सोचता हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी ने बहुत ही हर्ष के साथ और बहुत ही हिम्मत के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया है, और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसके महत्व को समझते हैं और उपराष्ट्रपति के महत्व को समझते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो जसवंत सिंह खुद कह रहे हैं कि चुनौती बड़ी, लेकिन हर चुनौती से निपटता उन्हें आता। संजीव जी, वाकई चुनौती इससे पहले जिन्होंने सॉल्व की होंगी शायद अलग तरह की रही होंगी, लेकिन ये चुनौती वाकई ऐसा लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए।
सबसे बड़ी चुनौती भी है, लेकिन उससे ज़्यादा एक बहुत बड़ा अवसर भी है उनके लिए। एक उनको ऐसा मौका मिला है जब वो कहीं ना कहीं जो पिछले 2-3 साल में नेपथ्य तो नहीं, लेकिन कुछ हाशिए पे उनका राजनीतिक करियर लगा हुआ था, उससे वो उभरे हैं, एक वापस फ्रंट रैंकिंग लीडर की तरह से सामने आए हैं। और जसवंत सिंह जी का बड़ा रिमार्केबल, जैसे कह रहे थे काटजू साहब, कि बहुत ही ज़बरदस्त उनका पॉलिटिकल करियर ग्राफ रहा है, डिप्लोमेटिक करियर ग्राफ रहा है। वित्त, रक्षा, विदेश, सब मंत्रालय उन्होंने संभाले हुए हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हुए हैं। तो ये एक उनको वापस से अवसर मिला है कि चाहे वो चुनाव हार जाए, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, खास एक धीर गंभीर, बहुत नीचे से बोलते हैं ब्रॉडकास्टर टाइप वॉइस है ना, वो एक बार वो रिच बैरिटोन आपको सब जगह सुनाई पड़ेगा। एक चर्चा में रहेगी उनकी शख्सियत। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप इनके ऑफिस में जाएंगे तो सवेरे 3:30 बजे उठते हैं जसवंत सिंह जी रोज। और उनका जो ऑफिस है उनके घर में बना हुआ, जिसके बाहर आपका संवाददाता खड़ा था, उसमें हमेशा आप कभी जाके मिलें तो अगरबत्तियों की खुशबू के बीच में बैठते हैं। बहुत किताबों के बीच में घिरे हुए, गीता रामायण से लेके नेपोलियन और जनरल रोमेल की ऑटोबायोग्राफी, बड़े इतिहासविद हैं, खास तरह के एक व्यक्तित्व हैं भारतीय राजनीति में जसवंत सिंह। तो उनकी एक तरह की वो अपने आप को इस चुनाव के जरिए, हार जीत तो सबको मालूम है नतीजा क्या आना है, कोई ऐसी रणनीति नहीं है उनके पास, तो इसलिए उन्होंने आपके संवाददाता के प्रश्न का जवाब भी नहीं है कि टेलीविजन के कैमरे के बाहर दरअसल तो कोई रणनीति नहीं है, नंबर गेम इतना ऑब्वियस है। लेकिन इस पूरे चुनाव के जरिए वो वापस पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। 2014 के बाद अगर कोई संभावित सरकार ऐसी बनती है तो उसमें उनका एक बड़ा पद प्रतिष्ठापूर्ण वापस से इस्टेब्लिश हो रहा है इन चुनावों के जरिए, अगर उस तरह का पासा बैठता है 2014 के चुनावों के पश्चात। But Pradeep, we also saw that Jaswant Singh, I think the lowest point in his career was at the Shimla National Executive, where he was actually expelled from the primary membership of the BJP. And it actually became a national spectacle at that point of time. And from that period to this day, if you just track the resurgence, what do you really think was the compulsion of BJP to field Jaswant Singh? Of course, Sharad Yadav very clearly said when his name came up for the vice presidential poll, he said that no, he wants to be in active politics for some more time. But what was the compulsion of BJP to field Jaswant Singh as the candidate for the vice president? नहीं, कई चीज़ें हैं। जिस समय उनको पार्टी से निकाला गया था तो बहुत से लोग थे पार्टी में, बल्कि कहना चाहिए एक मेजॉरिटी व्यू था कि उनके साथ अन्याय हुआ। जो जिस इशू पर निकाला गया वो उस समय एक इस तरह से बन गया उनके खिलाफ कि उनको पार्टी से निकालने का कुछ लोगों ने फैसला लिया। उसके बाद से, उनके लौटने के बाद से, वो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स तो करते हैं, पॉलिटिकिंग नहीं करते हैं। बहुत जो अंदर है वो बाहर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग में जाकर कुछ कहेंगे, बाहर आकर कुछ कहेंगे। उनकी दोस्ती, संजीव ज़्यादा जानते होंगे, जयपुर में काफ़ी समय रहे हैं, तो भैरव सिंह शेखावत एक तरह से उनके मेंटोर थे। एक बार भैरव सिंह जी का बताया हुआ किस्सा है कि जब ये पार्टी में आए थे उसके 2-3 साल बाद राज्यसभा में इनको भेजने के लिए प्रस्ताव राज्य से गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पार्टी के मना कर दिया। भैरव सिंह जी दिल्ली आए, वो पार्टी के नेताओं से मिले, कहा कि अगर इनको राज्यसभा में आपने नहीं भेजा तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, अलग पार्टी बनाऊंगा और इतने एमएलए जिता सकता हूं कि एक राज्यसभा का मेंबर जितवा लूं। वो दोस्ती लेकिन आखिरी दिनों में थोड़ी खटास उन दोनों के संबंध में आ गई, वापस हो गई थी। आखिरी दिनों से थोड़ा पहले जब वो उपराष्ट्रपति थे उस समय थोड़ी समस्या थी। लेकिन कुल मिला के जो प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ दूं तो जो जना सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, हालांकि आज उसकी इतनी प्रासंगिकता नहीं उस किस्से की, लेकिन चूंकि मुझे भी इसकी जानकारी, विजय राजे सिंधिया तब अब नहीं है, वो भैरव सिंह जी भी नहीं है, वो बहुत विरोध कर रही थी इनके नाम को। और भैरव सिंह जी ने जाके वहां पे थोड़ी धमकी भी दी, जैसे ये कह रहे हैं, और थोड़े आंसू भी बहाए क्योंकि वो भी बड़े एक्सपर्ट कलाकार राजनीतिज्ञ थे। तो विजय राजे जी का मन पिघला और बाद में भैरव सिंह जी जितने बड़े, उस एक लेवल पे उससे भी बड़े जसवंत सिंह जी के समर्थक बन गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत जबरदस्त। तो और अडवाणी भी, तो जो शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का था, जसवंत सिंह जी ने समाव अपनी क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस सबका रहा और सम्मान
सब करते थे। Right. I still remember those lines, in fact, with the BJP National Executive, which was held in Shimla, with the tears in his eyes. I still remember I was there at the press conference when he said that, you know, I'm the BJP's Hanuman. And he actually just went silent after that. See, that time the BJP was looking for a scapegoat. Yeah. They had lost the 2009 elections. They couldn't have done anything with Mr. Advani. Let's be frank, call a spade a spade. And so they needed to find another issue, another scapegoat. Jaswant Singh was convenient. Conveniently placed, he didn't have that kind of a political base. कोई ऐसा उनके समर्थक नहीं थे, तो उनको वहां पे शहीद किया गया, जिससे कि मुद्दा लोग 2009 में पार्टी की हार किन कारणों से हुई, कैसे हुई, उसकी बजाय एक बार फिर पार्टी में जिन्ना साहब छाए। बस जिन्ना साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन में। ये भी याद रखिए कि शिमला की जो बैठक थी वो 2009 के हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। बिल्कुल, कि वहाँ जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि क्या कारण थे, कौन लोग जिम्मेदार थे और आगे का क्या रास्ता हो। But now when you speak to Jaswant Singh, he doesn't want to talk about that chapter, so we'll quote him that let the bygones be bygones. Absolutely. I'll come to you, Ambassador Kadju. When this Pokhran 2 incident happened, Jaswant Singh played a very important role, especially after US had imposed sanctions and all. Would you just share a few experiences, the way he tackled with US at that point of time? What did he actually do? I think at that stage he was able to convey to the United States through his dialogue with Mr. Talbot India's compulsions which led India to these tests. Also the environment, the strategic environment in which India was placed. And above everything else, that India could not be treated as, say, Iran or North Korea, that India had to be brought into the fold. The Americans and the West had realized right initially that India, by doing those tests, had destroyed this very comfortable nuclear order which had been put in place. And I think Mr. Jaswant Singh explained to them that without India in some manner or form being part of that nuclear order, the strategic nature of this world would not be complete. After all, we are 1/6 of humanity. So the process which began then, I feel, was culminated in the India-US nuclear agreement. Right. I mean, it's a different matter that whatever the stand the BJP may have taken and others may have taken, but history, I'm confident, will judge that the culmination of the process which Mr. Jaswant Singh began in '98 after the tests led finally to the deal. और संजीव, जैसे कि कडू साहब भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल अगर हम सिनेरियो में देखें तो जो उनका रोल था उन्होंने बखूबी निभाया भी, लेकिन शायद जो उनकी एक विचारधारा है या फिर जो एक साफगोई के साथ वो कहते हैं बातें, वो राजनीतिक अगर हम मैदान में कहें तो कई बार उनके लिए नुकसानदेह भी रही। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तो जो ट्रेडिशनल हम परंपरागत जिस एक मोल्ड में या सांचे में राजनीतिज्ञ को ढालते हैं, शायद उसमें जसवंत सिंह जी को ढालना मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनकी कोई निश्चित एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह से नहीं है कि वो एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने चित्तौड़गढ़ से लड़ा था और उसके बाद वो जोधपुर से एक बार चुनाव लड़े, फिर अब दार्जिलिंग से। तो उनकी भैरू सिंह जी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते रहते थे। मैं चित्तौड़गढ़ का चुनाव तो पहला मतलब वहां पे महाराणा के खिलाफ लड़े थे और बड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ था। वो मेरे ख्याल से 89 की बात है या 92 की बात है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल तो वो लोकसभा मतलब वो टेलर मेड राज्यसभा के लिए है। इस बार फिर इंसिडेंटली लोकसभा में इस समय, क्योंकि वो उस तरह के पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वाले लीडर नहीं। कई लीडर्स होते हैं जो, जैसे काजू साहब ने कहा, एक स्टेट्समैन, थिंकर, बड़ी पिक्चर, बड़े इश्यूज को लेके सोचना, वो किसी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से उस तरह से बनना, उस तरह से उसको सजोना, संवारना, सींचना, वो उनके टेम्परमेंट में नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो यस, सो उनका वो राज्यसभा के ज्यादा लायक हैं, इसलिए ये शायद चुनाव भी उनके ज्यादा स्वभाव के अनुरूप है। बट
मतलब कुल मिला के उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मोल्ड में नहीं, ही इज मोर लाइक अ ग्लोरिफाइड थिंकर, ब्यूरोक्रेट, स्टेट्समैन, व्हाटएवर यू से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट हिम कि भाई ये पॉलिटिशियन है, और इसीलिए उनको लेकिन उसका ज्यादा लाभ मिला है। इस सांचे में ढलने का उनको लाभ ज्यादा मिला है, नुकसान कम हुआ है। ऐसी पार्टी में है जहां आरएसएस से, अगर आपकी आरएसएस की बैकग्राउंड नहीं हो तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उस पार्टी में वो शीर्ष तक गए, और जो शीर्ष नेतृत्व था उसके सबसे करीबी भी रहे। बिल्कुल, वाजपेयी जी हो, आडवाणी जी हो, दोनों से एक तरह से बराबर के संबंध थे। उनके वित्त मंत्री बनने पे आरएसएस का वीटो था। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वाजपेयी जी ने बनाया। बिल्कुल, तो ये कई अहम उनके कह सकते हैं कि जो एक गुण कह सकते हैं जसवंत सिंह जी के हैं, और जिस तरीके से मेहमान कह रहे हैं हमारे कि इस लिहाज से जिस उम्मीदवारी की बात हो रही है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए शायद बीजेपी के अंदर उनसे बेहतर उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा था। और कुछ देर पहले पंचानन हमारे सहयोगी ने उनके घर के बाहर का जायजा लिया। ये देखते हैं कि किस तरह की हलचल वहां पर थी। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद अब बारी है देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनावों की। मौजूदा उपराष्ट्रपति और यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी के खिलाफ एनडीए ने जसवंत सिंह को मैदान में उतारा है। जसवंत सिंह अपने इस 15-3 मूर्ति लेन से निकलकर ठीक 12:30 बजे संसद भवन में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन का पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन भी है। जसवंत सिंह पर की अगर प्रोफाइल पर नजर डालें तो वो एक सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं, और इसके पहले एनडीए के शासनकाल में वो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसी अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़ों के गणित पर नजर डालें तो यूपीए का संख्या बल ज्यादा भारी नजर आता है, लेकिन इसका फैसला 7 अगस्त को होने वाले मतदान में ही होगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी हाँ, तो जैसे कि पंचानन बता रहे हैं कि हलचलें जरूर तेज हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो निकलेंगे। एक बार फिर हम आपको ले चलेंगे सीधी पंचानन के पास, लेकिन उससे पहले वापस लौटते अपनी चर्चा में। प्रदीप जी, जैसे कि बीजेपी के अगर लिहाज से देखा जाए, जसवंत सिंह की जो उनकी काबिलियत रही है, जो उनका एक अब तक का एक्सपीरियंस है, उसके लिहाज से मुफीद उम्मीदवार बीजेपी के अंदर थे, या फिर बीजेपी के पास ऑप्शंस थे लेकिन उसके बाद उनको चूज किया गया? नहीं, हमको लगता है कि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, उसको देखते जो स्टेचर है उनका पार्टी में, पार्टी के बाहर भी उनके एडमायरर्स की संख्या बहुत बड़ी है। जो उनके विपक्षी हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं। तो बीजेपी के पास इससे बेहतर उम्मीदवार तो नहीं था, और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो ऐसे समय में बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट बने हैं जब उनका जीतना एक तरह से सबको पता है कि मुश्किल है, नहीं हो सकता है। अगर वो बनते उपराष्ट्रपति तो शायद एक बहुत अच्छे राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति होते, लेकिन उनको ये मौका लगता नहीं है कि मिलेगा। बीजेपी में पढ़ने लिखने वाले नेताओं में ऐसे नेता जो बीजेपी में रहते हुए जिन पर कोई कम्युनलिज्म का आरोप कभी न लगा हो, ऐसे बिरले नेताओं में वाजपेयी, शेखावत और जसवंत सिंह, ये 3 नेताओं को आप मान सकते हैं। सुषमा स्वराज उसमें चौथी नेता हैं, जिनका वाजपेयी जी का तो था बैकग्राउंड आरएसएस का, लेकिन ये इनकी स्वीकार्यता ऐसे लोगों में भी थी जो बीजेपी को नहीं पसंद करते। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ये अच्छे लोग गलत पार्टी में हैं। वाजपेयी जी के लिए तो बहुत कहा जाता था, जसवंत सिंह के लिए भी उस तरह का स्टेचर, मतलब वो पार्टी की समस्या हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, जसवंत सिंह को सुनने के लिए पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड इंतजार करता था कि इस पर क्या राय होगी उनकी, और समस्या का समाधान इतनी आसानी से निकालते थे। वाजपेयी जी कोई बयान दे दें, उससे कंट्रोवर्सी हो गई, स्पोक्समैन थे काफी समय तक, तो उनको बहुत जब घेरा गया तो उन्होंने एक बात कही कि भाई वाजपेयी जी जो बोलते हैं वो रामचरितमानस की तरह है, जिस तरह से आप चाहिए व्याख्या कर लीजिए। And which is why, as Sanjeev was pointing out, that vice presidential election apparently is that opportunity where BJP has thought of rehabilitating Jaswant Singh in some way or the other. Of course, the results of this poll are known to everybody, but yes, of course, after 2014, he could be rehabilitated in a much bigger way. We could see him much more growing more than what he is right now. Now, I'll come to you, Ambassador Kaju, but let me go across to Akhilesh Suman, our correspondent who joins us from the corridor in Parliament. Akhilesh, good morning. What exactly is happening? Have some of the BJP leaders really reached there? Just can you narrate what exactly is going on over there?
Right, Neelu. Actually, BJP is waiting for Mr. Jaswant Singh to come here because the time that has been fixed for Mr. Jaswant Singh is 12:30 for nomination, and he will come directly to Lalkishan Advani's chamber, and then from there all BJP and NDA leaders will assemble there, and from there he has to come to room number 18, that is the room of Secretary General, and here he will file the nominations. 4 sets of nominations has to be filed here in presence of the Secretary General, Neelu. Akhilesh, we were seeing your interview when you had interviewed him on the day when his candidature was announced, and he very clearly told you that he is a man who loves challenges. You were also a part of that BJP National Executive which happened in Shimla. Could you just recount a few experiences you had with him as a personality? Actually, in one way or other, I think it was one of the worst times Mr. Jaswant Singh has faced in his whole political life, because the book that he has written about Jinnah, it was, I still feel that it was somehow or other, it was not well taken by either the RSS or by the BJP or by the Indian audience too, because the type of divide that had been created at the time of partition in the minds of people and also in the mind of political class, and Jaswant Singh tried to dig the history in a different way. So it was one of the worst periods that BJP wanted to clear the air, and you might remember that the same thing was done by Lalkishan Advani earlier when he went and visited the Mazar of Jinnah. So these were the parallels that had happened in BJP, and after that you must be aware that how Lalkishan Advani was also put in back burner, but Jaswant Singh has gone much farther, and then he held responsible not Jinnah but someone else for the partition. So this was one of the worst times. He took the biggest challenge in his whole political life, and he did not try to persuade the party before the book was come out actually. But after the book came out, the BJP went into knee-jerk reaction, and he was expelled from the party. So also when I recount, there was some sort of tears and then some sort of sorrow in Jaswant Singh's eyes, and if I say very clearly that it was a very Machiavellian writing of Jaswant Singh at that point of time, he might have thought that BJP and the right-wing ideology of the country might get benefited out of this digging of history, but it did not work, because India has a fabric, India has a secular fabric, right. and on one thing, on the question of partition, India is, I think, united in one way or other. Indeed, Akhilesh, and we've seen the kind of ups and downs which his life has gone through, and especially from the time when he was expelled from the party and to this day where his resurgence now is being talked about. His resurgence has been phenomenal, especially after Nitin Gadkari called him back to BJP, and now he is here contesting for the vice presidential post. Our new guest joins us now in the studio, another senior journalist, Parsa Venkatesh. Parsa, welcome here on our special coverage today, on a day when Jaswant Singh files a nomination, and we are discussing all the nuances of his personality. And of course, we'll also be discussing Muhammad Hamid Ansari, who's also in the fray. But Parsa, what I would like to discuss with you is that of the past, Jaswant Singh has always